हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हमारे साथ है मोहित भाई। मोहित भाई इज अ फॉर्मूला वन एक्सपर्ट एंड मोहित भाई इज आल्सो was also a consultant for FIA who was consultant for the inspection team। जब उन्होंने ना इंडियन ग्रांड प्री करनी थी तब वो FIA के इंस्पेक्शन टीम में के साथ कंसल्टेंट थे। प्लस जब इंडियन ग्रांड प्री फाइनल हो गई तो वो फॉर्मूला वन के कंसल्टेंट थे फॉर इंडियन ग्रांड प्री itself। सो वी हैव गॉट अ अमेजिंग हैंड टुडे। हम बहुत मजा आने वाला है आज हमें। मोहित भाई ये समझाएंगे कि फॉर्मूला वन के अंदर जो कॉस्ट कैप थी, कॉस्ट कैप के साथ में जो रेडबुल का ब्रीच हुआ, आगे के प्रोसेसेस क्या हैं, ये एग्जैक्टली ब्रीच कैसे हुआ एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। मोहित भाई, ऑल ओवर टू यू। प्लीज टेल अस मोर अबाउट फॉर्मूला वन कॉस्ट कैप एंड Hi, रेडबुल्स ब्रीच। hi. First of all, I'd like to welcome all the fans of Formula One with Geet. I'm not going to move beat around the bush. I'll straight cut to the chase. So, as you know, we all know that recently on October the 10th, 2022, FIA was supposed to release the certificate of compliance to all the F1 teams, and 8 out of the 10 teams were compliant as per as the FIA. Red Bull was the one who did not get the certificate and was uh, not, I won't say the alleged, but they have breached the राइट। cost cap as per as FIA, which is considered as a minor breach because it's under 5% cap. The breach is unclear, but it is somehow or the other speculated to be in the range of between $1.5 million to $2 million, which again, I am not going to comment whether it should be a minor or a major one. It's the way it is being handled. बट Now, मोहित भाई, एक बात ये बताओ कि बिफोर यू गो फॉरवर्ड आई वांट टू नो एंड आई एम श्योर माय पीपल, द पीपल ऑफ फॉर्मूला वन हु इज इंटरेस्टेड इन फॉर्मूला वन इन इंडिया वांट्स टू नो दिस दैट यार, ये 2-2.5 मिलियन से क्या फर्क पड़ता है आपके हिसाब से? मतलब ऐसा क्या ही हो जाएगा दो ढाई okay, 2-2.5 मिलियन से कि भाई okay, 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 बवाल ही मच चुका है। okay, okay, okay. तो मैं आपको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, इमेजिन इस आप जो है पहले प्रीवियस से इन 2019 onward till 2019 till 2020 also teams were investing to the tune of $400 million. बिल्कुल। $400 million, and if you look back, there were, like, if I have to probably take into account last 15 years, 5 out of last 15 years teams that had spent the maximum budget won the championship. So when you अच्छा। look at that, हम्म। when you look at that particular figure, you will say, "अरे यार फर्क नहीं पड़ना चाहिए." You know, you, if say for example you are running a sprint, ठीक you है। can run a sprint in 11.5 seconds. ठीक है। Okay. Now I ask you that I tie your leg, ठीक है। because the this cut is as good as tying your leg because you are working at one third of your efficiency. मान लिया, मान लिया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने आपकी टांग बांध दी है, आप ये स्पीड तो नहीं अचीव कर पाओगे, 11.5 पे तो नहीं आ पाओगे, लेकिन हाँ। अब आप मान लो मैं एक टीम का थोड़ा सा पैर लूज कर दूं, हम्म। एक को तो मैंने बड़ा कस के बांधा है, एक का मैं पैर थोड़ा सा लूज कर दूं, समझ गया, समझ गया। आप समझ सकते हो कितना फर्क पड़ सकता है ये। Now, what are the possible scenarios? So, what हम्म। I'm going to basically tell you is what options does FIA have, what राइट। options does Red Bull have, and what I'll at the end of my conversation, I'm going to tell you what's the probable or most likable things that will happen in future. So, ठीक the है। first thing that comes into our mind, that is ABA. ABA is known as arbitrary breach agreement or अच्छा। agreed breach agreement. So what happens is whenever there is a cost cap breach, हम्म। so the FIA talks, they have these private talks with the concerned team over here, Red Bull. They will probably talk with them. They'll try to discuss that, okay, you ठीक know, है। this is what is the breach. And basis on that, they will tell them, they'll mind them, they will set a quantum of punishment for them. And ठीक है। Red Bull will agree to it. And both parties will have a joint kind of a statement that yes, we have come to an ABA, we have come to an agreement that we did this particular breach and this is the punishment that we are going to follow. तो अब इसके बाद क्या है कि अगर जैसे एबीए नहीं होगा तो एबीए के ठीक बाद है। एफआईए एक स्टेटमेंट रिलीज करेगा और उस स्टेटमेंट में ये बताएगा कि हम रेड बुल के साथ एक एग्रीमेंट पर नहीं आ पाए हैं। तो रेड बुल ठीक को है। जो है सीसीए, सीसीए का आप हिंदी में नहीं बोल सकता, तो नहीं, सीसीए कोई बात आपका हो गया कॉस्ट कैप एडजुडिकेटर पैनल। ये भी एफआईए का पैनल है। नहीं। ये अच्छा। पैनल को पूरा का पूरा केस रेफर किया जाएगा।
दैट्स द स्टेप नंबर 2। आप एक अगर एबीए फेल होता है तो उसमें क्या वापस मैं होगा? बोलता हूँ, आप रिवाइज करता हूँ कि एबीए जो है वो एक ये एक पहल है एफआईए की। वो रेड बुल के साथ काम करेंगे और वो बताएंगे भैया हाँ, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट क्या होगा इस चीज का। अप्रोप्रिएट पनिशमेंट अगर क्या मान होगा? लो एफआईए ने कुछ सजेस्ट किया, रेड बुल ने मान लिया, काम खत्म, थैंक यू सो मच, हमको बता हाँ, दिया जाएगा ये प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन ये है। ये बट सोल्यूशन। अगर ऐसा होता है कि रेड बुल नहीं मानता है, उसको प्रॉब्लम हार्श लगती है, या फिर अगर रेड बुल जो सजेशन एफआईए को दे रहा है और एफआईए को बहुत सॉफ्ट लगती है, तो दोनों ही केसेस के अंदर एबीए से हटके सीसीए चला जाएगा, जो एक इसी कमेटी से। बैठेगी। हाँ, सीसीए प्रोबेबली एक कमेटी होगी, जैसे कमेटी। वो कमेटी को केस रेफर कर दिया जाएगा। हाँ, अब आप आगे बोलिए। हाँ, तो वो कमेटी, अब जब कमेटी क्या करेगी, कमेटी केस को करेगी वापस स्टडी। सही। वो ये वापस वापस से देखेगी, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को अब वापस से रीएनालाइज करेगी। वो हम्म। वापस से देखेगी और ये देखेगी कि क्या ये ब्रीच हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो रेडबुल से भी बातचीत करेगी, रेडबुल ठीक को है। भी बताएगी। उसमें जब वो अपनी फाइंडिंग को आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो फाइंडिंग्स पे आए जो एफआईए ने पहले रिलीज की हैं। अब एफआईए ने तो अभी बोला है कि रेडबुल का माइनर ब्रीच है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सीसीए बोले कि माइनर नहीं है, बहुत मेजर ब्रीच है। अच्छा। ये भी अच्छा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। हम्म। और अगर वो ये भी बोल सकते हैं कि ब्रीच फाइन, तो उनको पहले ठीक है। उनके पास क्या है, पहले उनको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ब्रीच है या ब्रीच नहीं है। सही है। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि ब्रीच नहीं है, तो एफआईए को विल बी कंपेल्ड कि वो रेडबुल को एक आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस रिगार्डिंग कॉस्ट कैप इशू करें। हम्म। अगर वो कहते हैं कि नहीं, इनका ब्रीच है, तो उनको बताना पड़ेगा कि ब्रीच किस एक्सटेंट का है। हम्म। ये भी बताना पड़ेगा कि माइनर है या मेजर है। और हम्म। उसके साथ साथ उनकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी बतानी पड़ेगी। हम्म। अब ये नहीं होगा कि दे वोंट हैव एनी डिस्कशन विद रेड बुल, ठीक उनका है। डिसीजन विल बी फाइनल। ठीक है, अब वो तो खाली बताएंगे अब वो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, हाँ, अब वो और क्या स्टेट पनिशमेंट मिलने वाली हो। हाँ, ये क्या प्रश्न है। अब उसके बाद क्या आता है कि रेड बुल को लगता है कि नहीं यार, वो ये कहते हैं कि नहीं यार ब्रीच आपको होगा, रेड बुल फिर भी कहता है कि नहीं ब्रीच नहीं है, हम वी आर स्टिल एडमेंट कि ब्रीच नहीं है। अब रेड बुल के ठीक पास है। क्या ऑप्शन रह जाता है? हाँ, उसके बाद अब क्या क्या होगा। है, थर्ड ऑप्शन जो है, एक हमारा कोर्ट है, कोर्ट जो है एफआईए ने ही कोर्ट बनाया है, वो कोर्ट हम्म। का नाम है कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है। तो वो जो कोर्ट ऑफ अपील है, वहां पे जितने भी मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड केसेस होते हैं, वो सारे हम्म। वहीं को रेफर किए जाते हैं। पर वो जज तो कौन डिसाइड करता है, एफआईए जज डिसाइड करता है क्या उसके। उसमें जो जज का जो पैनल है वो एफआईए ही डिसाइड करता है, बट उसको दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी फेयर। वहां पर अच्छा, क्या है, ठीक है। देयर इज उनका जो पैनल है, देयर गोइंग टू हैव अ पैनल ऑफ अराउंड 12 टू 15 जजेस। अच्छा, पूरी ज्यूरी बैठेगी, जज क्या होगा। पूरी जोरी बैठेगी, तब वहां पे ये डिसाइड नहीं होगा कि ब्रीच है या नहीं है। वहां पे ये हम्म। डिसाइड होगा कि जो सीसीए की फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर जो है कोर्ट ऑफ अपील देखेगा कि ये रेडबुल की आर्ग्यूमेंट सुनेगा, क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा ना, रेडबुल बोलेगा कि यार ये जो फाइंडिंग है ना, पर्टिकुलर फाइंडिंग के खिलाफ केस होगा, तो वो पर्टिकुलर फाइंडिंग को ही रेफर किया जाएगा। बट वो जो सीसीए की फाइंडिंग है वो एडमिसिबल टू द कोर्ट है। वो डेफिनेट नहीं, वही, क्योंकि वो तो एडमिसिबल टू कोर्ट होगी होगी, क्योंकि अच्छा, जो ठीक है। रेडबुल है, रेडबुल उसकी अगेंस्ट ही तो फाइट कर रहा है। समझ गया, अगर ठीक वो है। एडमिसिबल नहीं होगी, बिकॉज दैट विल बी द बेसिस, अब वो बेसिस ये नहीं रहेगा कि ओरिजिनल आपकी क्या फाइंडिंग्स थी। समझ गया। अब जो फाइंडिंग्स होंगी, जो सीसीए की फाइंडिंग्स है, दे विल हैव अ फाइनल फाइंडिंग टिल कोर्ट ऑफ अपील overrules it or keeps or puts it in favor of Red Bull or FIA। क्या लगता है आपको होने क्या वाला है, मतलब ठीक हाँ, है आपने तो कोई प्रोसेस बता दिया, अब हाँ, आपके तो हिसाब से अच्छा, क्या होगा। ये जो अगर जो तीन चीजें हैं, अगर मैं इसको बोल के चलूं, अगर हम इसको लेके चलें, मिनिमम से मिनिमम 4 to 6 मंथ का टाइम लग जाएगा, आज की डेट से अगर हम कंसिडर करें तो। अच्छा। कम से कम 4 से लेके, इट कैन बी मोर ऑल्सो, इट कैन हम्म। बी लेस, लेस की लाइकली वुड बहुत कम है। बिकॉज जब भी कोर्ट केसेस जाते हैं तो होता है। इससे हमें दो बातें बहुत अच्छे से पता चलती है कि जो एफआईए पेनल्टी शायद से रेडबुल के लिए सोच रहा है, वो हम्म। इतनी सिंपल या इतनी लीनियंट नहीं होने वाली, क्योंकि तभी अच्छा। इतना लग रहा है। हम्म। द मार्जिन ऑफ 21 सीजन्स इज वेरी वेरी फाइन, बहुत ही कम, बहुत अच्छा, मुझे लिमिटेड। बताओ, द ओनली थिंग टोटो वुल्फ कैन टेक आउट फ्रॉम दिस, मतलब टोटो वुल्फ के पास क्या ही, मतलब उसको कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप तो मिल ही गया, बट वो आई एम श्योर ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा है।
अरे आप जरा ये चीज सोचिए, वो सिर्फ ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ रहा है, अच्छा एक लेगेसी के पीछे लड़ रहा है। लेगेसी क्या अच्छा है? माइकल शूमाकर के 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड। वो एक नहीं मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि वो आठवें लुइस को आठवां बनाना चाहता है, मतलब चाहता है। एट्थ देना चाहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट हाँ, अल्टीमेटली है तो ड्राइवर्स चैंपियनशिप ना। है वो तो मैं ड्राइवर खाली चैंपियन। ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या इन एनी सिनेरियो, चाहे वो भाई अपने कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, तब भी क्या वो ये पा सकता है? कैन मैक्स वर्स्टैपन बी स्ट्रिप्ड फ्रॉम हिज ड्राइवर्स चैंपियनशिप और नॉट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पर जो टोटो वुल्फ का पॉइंट है, अ ड्राइवर इज एज गुड एज द मशीनरी। ठीक है। इफ मशीनरी इज बेटर, जैसे आपको मैंने पहले रेस का एग्जांपल दिया था, अगर हम्म आपकी मशीनरी जो आप यूज कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर नहीं भाग रहा है, यहाँ हम्म पे वो एक प्रैक्टिकली एक रेस नहीं है। यहाँ पे आप अगर आपका एक जॉकी है, जॉकी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर घोड़ा ही अच्छा नहीं है आपका, या एक घोड़ा है जिस घोड़े के पास एक एडेड एडवांटेज है, मैं उस आपकी बात चलो मान गया। हाँ, Why don't we talk about then 2007? ओके, सी भाई मैं आप अभी 2007 के अंदर भी तो इवन मच मोर एक्सुबरेटिंग सर्कमस्टांसेस थे यार। यहाँ तो खाली 2 मिलियन 5 मिलियन की बात चल रही है, वहां तो उसने पूरी गाड़ी कॉपी कर ली थी यार। ओके, और मैक्लेरन को डिस्क्वालीफाई किया गया था। हैमिल्टन एंड अलोंसो केप्ट देयर पॉइंट, 109 पॉइंट दोनों को मिले थे और दोनों के पास थे। आपकी मैक्लेरन बात को डिस्क्वालीफाई किया था ना। तो आप बताओ आपकी कि उसके रिलेशन के अंदर आपके क्या पॉइंट था? नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता, इट्स हाईली अनलाइकली दैट एफआईए या फिर कोर्ट ऑफ अपील ये डिसीजन कभी भी लेगा। उसकी द चांसेस ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग is close to zero. I'll say it is zero. I'll not even say it is close to zero because ये एक माइनर ब्रीच है, पहली बात है, क्योंकि अभी एफआईए ने बोला है कि एक माइनर है, एक मेजर ब्रीच है। ये हम्म, पहली बात है, एक माइनर ब्रीच है ये। तो ठीक है। माइनर ब्रीच पे भी अगर आपने पेनल्टीज मेजर ब्रीच वाली लगानी है, तो फिर आपने माइनर और मेजर ब्रीच का आपने वो डाइफरकेशन किया ही क्यों है? सही बात है। आपने किया है तो डेफिनेटली आप पूरा एक्सट्रीम तो नहीं लेके जा सकते हो, तो वो चीज तो नहीं होगी। आई ठीक मीन है। ये तो मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं कर। आपका जो हम्म क्वेश्चन था जिसको मैं आंसर कर रहा था कि टोटो वुल्फ क्या सोच रहा है, या व्हाट विल हम्म मर्सिडीज, व्हाट विल दे हम्म प्रेस। हम्म मैं आपको सिर्फ मर्सिडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, या टोटो वुल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था दैट अगर वो जाते हैं, या वो अगर रेडबुल ये एफआईए को पुश करते हैं, तो वो किस हिसाब से पुश करेंगे, नॉट हम्म कि एफआईए क्या लेगा। तभी मेरा आंसर हम्म होगा। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट कि आपका जो ब्रीच है वो ब्रीच कहाँ पे हुआ है। अब अगर हम ब्रीच की बात लेंगे, कॉस्टिंग को अगर हम लेके चलें, तो कॉस्टिंग के बेसिकली दो मेजर हेड्स रहते हैं। वन इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, विच इज नॉट टू डू विद योर कार एंड कार परफॉर्मेंस, इट इज टू डू विद द पेरिफेरल सेटअप। उसमें अगर हम्म ज्यादा पैसा लगाए तो आई एम 100% श्योर किसी मर्सिडीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म लेकिन अगर कार डेवलपमेंट में, क्योंकि कार में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है कार डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एक आ जाता है कार ऑपरेशनल कॉस्ट। अब हम्म मान के चलिए अगर कार डेवलपमेंट पे, अगर ये सीसीए बोलता है दैट इनका जो डेवलपमेंट बजट है दैट हैज ऑफशूट, हम्म that will have a very, that you can't take lightly. That if you are taking lightly, then it's a red flag kind of a situation. हम्म और अगर ये आप कहते हो कि ऑपरेशनल, क्योंकि यू नो अंडरस्टैंड दैट व्हेन अदर टीम्स आर यूजिंग यूज पार्ट्स, दे आर हम्म डूइंग इट अंडर दिस थिंग, और इवन ऑपरेशनल में यू यूज दैट मनी इन सम सर्टेन अपग्रेड्स। अब हम्म माइनर अपग्रेड ऑल्सो इन अ लिमिटेड कॉस्ट कैप कैन मेक मेजर डिफरेंसेस। उसको हम्म अगर आप लीनियंटली लोगे, देन it's I like what I will consider is that Ferrari and other teams, because even if you look at 2022 season, Mattia Bonito and other teams are very vocal about it. How come Red Bull are able to bring so many upgrades to every track? राइट Like they could not do it. So they, for them, it's not about the 2022 season, it's about the 2021 season. तो राइट अब वहां पर क्या है कि अगर ये हुआ है, सी इफ दिस ब्रीच हैज हैपेंड इन द डेवलपमेंट और इट हैज हैपेंड इन ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ एन अपग्रेड, देन यू कांट बी lenient. Like this is my particular opinion, and you नहीं, आपकी and बात वाजिब है। मतलब संक्षिप्त के अंदर आपकी बात ये है कि भाई टोटो वुल्फ को जो जख्म है वो 2021 का है, वो चाहता है कि भाई लुइस को 8वीं मिल जाए और मटिया लेकिन उसको नहीं बेनोटो। मिलेगी। वो तो खैर, जैसे मैंने, सॉरी मैंने वो तो खैर उसको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा था हाँ, ही वो विल प्रेस ट्राई वही दैट। कर रहा है, देखो हाँ, ट्राई मिलेगा वो, नहीं मिलेगा एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
देखते हैं, आप जैसे आप बता रहे हो सीसीए के पास आने दो, फिर आई एम श्योर सीसीए का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टोटो को, या तो टोटो को पसंद नहीं आएगा या रेडबुल को पसंद नहीं आएगा, तो ये आगे जाएगा कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, या तो टोटो करेगा कोर्ट ऑफ अपील के अंदर सीसीए के खिलाफ, या रेडबुल करेगी, दोनों में से ये कुछ भी Red Bull, होने वाला है। दोनों बट दोनों में से एनीवेज, कोई। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई ऑल्सो थिंक कि जो मटिया या फिर जैक ब्राउन या जितने भी लोग आए हैं इसके खिलाफ बोलने के लिए, वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि जो अब 2022 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस है, 23, 24, 25 तक ये परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि उसका एक डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि एक डोमिनो इफेक्ट से चलता है ना सब कुछ, कि भाई जो जो एफर्ट उन्होंने मारा है, जो कार का एडवांसमेंट उनके पास है, अब वो आगे तक रहेगा जब तक रूल्स चेंज नहीं हो जाते। अब जो 2026 के अंदर रूल्स चेंज होने वाले हैं, मेजर रूल चेंजेस 2026 के अंदर होने वाले हैं, जब पूरा MGUI छटने वाला है, तो उसके पहले तक रहेगा। तो इसलिए भी मेरे को लगता है सबको मिर्ची लग रही है, और लगनी भी चाहिए, मतलब बट आई ऑल्सो थिंक दैट लगनी भी चाहिए, एक स्पोर्ट को फेयर रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नहीं नहीं नहीं, वो मतलब अल्टीमेटली यही है कि दे डिड इट, एंड आपने हमको बहुत बढ़िया एक चीज समझाई कि भाई पहले ABA होता है, फिर CCA होता है, एंड देन द कोर्ट ऑफ अपील इज देयर, एंड देन टोटो विल फेस ट्राइंग टू sabotage the first the Red Bulls authenticity, because I don't know, maybe Nick DeVries is the very recent ghaw that Toto Wolff has. Anyways, that's just a light point. But anyways, more importantly, everybody is trying to sabotage Red Bull's effort, because that will probably prove everybody that why Red Bull has such a greater speed and greater development, and उनके टायर्स भी कम थी, क्यों खराब हो रहे हैं, मतलब इन द रेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, मल्टीपल पॉइंट्स आर देयर, प्लस दे डोंट वांट अ चीटर to get a supremacy on a sport which they also put in equal effort of. Amazing point of view है, आपकी knowledge कितनी शानदार है, I mean you have such a deep knowledge, and the kind of contacts that you have in F1, we were so benefited with this knowledge. Is there any closing statement that you want to give? I just want to have a question for all for you as well as your viewers. How come Hmm. a team with 1/3 of the budget Hmm. is able to perform at the similar levels when they were spending 3 times as much as what they're spending right now? Hmm. That's a thought that I wanted. You know, I don't want you to comment. I don't want anybody to think about it. I want people to think about it, but Hmm. just try to have a thought. Let this thought germinate in this head. How this thing is possible. तो देखो, आपका जो पॉइंट ऑफ Beautifully. व्यू है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि कम खर्चा कम होने के बाद जब सबको एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दिया गया है, उसके ला दिया बाद भी गया। कोई जहां जो ऊपर था वही ऊपर क्यों है, जो नीचे था वही नीचे क्यों है? हाँ, और जो परफॉर्मेंस डिफरेंशियल है उसमें भी फर्क नहीं है। अगर ये हो, से फॉर एग्जांपल आज के डेट पे अगर मैं Q1 देखूं, Q1 में कितना ही होता है कि रेड बुल तीसरा रन कर रहा होता है, या मर्सिडीज तीसरा रन कर रही होती है, या फिर फरारी तीसरा रन कर रहा होता है। पहले भी आपका ये 2 रन करके चुप बैठ जाते थे। आज भी आप देखोगे कि Q1 में कुछ ही 5-6 मतलब 3-4 टीम्स हैं, वही अपना वापस रन कर रही होती हैं कि किसी तरीके से हम टॉप 15 में आ जाएं। Q1 की परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सेम, Q2 की परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सेम, Q3 की परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट सेम। मेरा ये मतलब है, अगर हम ये कोई चीज लेके आए हैं, और ये छोटा मोटा नहीं है, आप ये चीज देखो, मैं 500 मिलियन जहां खर्च कर रहा हूँ, वहां पर आज की डेट में मैंने आपको बोला कि पहले जब मैं भाग रहा था, आज मैंने अपनी एक बट isn't it a good point for cost cap itself? मतलब अगर आप ये देखो कि भाई, अगर as a team, if you're spending even 1/3 of what you were spending, then it will be a good point for cost cap, is because अगर आप सेम परफॉर्मेंस या सेम रिलेटिव परफॉर्मेंस, नॉट दैट परफॉर्मेंस, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नहीं, रिलेटिव परफॉर्मेंस, अगर किसी टीम के अगेंस्ट अगर आप उतना ही परफॉर्म कर रहे हो, इवन बाय स्पेंडिंग 1/3 ऑफ व्हाट यू यूज्ड टू, देन इट्स अ गुड थिंग ना। मतलब देन मोर टीम्स विल कम इन एंड दे कैन आल्सो थिंक दैट हम भी इतना खर्च करके उतना कर सकते हैं, बिकॉज आई मीन वील डू इवन बेटर, See, बिकॉज it is the way you look at it, it is good. But my question is cost cap policing that effective? Because there, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ why because not? Why uh, not is cost fact effective? Why no not are the cost new rules effective? no Everything is cost effective. cap policing, not cost cap. Cost पुलिसिंग ठीक है, अभी वो एक डाउट में अभी पहले ही कॉस्ट कैप का रूल रेगुलेशंस अभी अभी अपन को पता लगा है कि रेड बुल ने ब्रीच करा है, तो आई एम श्योर जब उसकी एक्चुअल लिटिगेशन होगी, जब उसको एक्चुअली कंपेल किया जाएगा किसी पनिशमेंट पे, तो अपन बात करेंगे पुलिसिंग के बारे में। एंड
मुझे लगता है कि कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी पुलिस या किसी भी कोर्ट या किसी भी रेगुलेटर का काम डर पैदा करना होता है, ना कि रूल अप्लाई करने का पहला मकसद ही डर पैदा करना होता है। बचपन में सिखाया जाता है ना कि अब तवा मत छू, गर्म होगा। तो जब एक बार छू लेगा, गर्म लगेगा, तब अगली बार से नहीं छू, क्योंकि डर बैठ गया उसके दिमाग में। हेंस जो ये अब सीसीए या जो कोर्ट ऑफ अपील या जो भी इनको एक बताएंगे कि यार ये तुमने गलती करी है, एंड दे विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ बाय इवन 100 पॉइंट्स, और आई डोंट नो, लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम सिनेरियो दैट यू सेड, दे विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ द होल डब्ल्यूसीसी इटसेल्फ, देन हर टीम के मन में डर बैठेगा। इट विल सेट एन एग्जाम्पल, एंड आई एम श्योर आगे फ्यूचर के आने वाले 10-15 साल के अंदर इवन मोर इंस्टेंसेस कपल ऑफ होंगे, बट दिस विल सेट एन एग्जाम्पल एंड विल बी पायनियर मोमेंट। So this has to come, na? Right. Awesome. Thank you, Mohit bhai, for coming on the channel. It was just one. I'll just take one more minute. बस एक और चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ, that FIA is probably should not be making noise for the wrong reasons. Okay. वो मैं 3 चीजें बोलूंगा. एक, Ferrari and FIA's secret deals that should not happen. Second, I'll speak about is, I'll talk about, probably if you want, I'll skip it. This particular thing, what's happening, that should have not happened. And whenever something, whenever you're conducting, say, a particular event or something, there should be a proper clarity. Right. You should not be making, noise for all the wrong reasons. Because no, you're absolutely right. The rules should be even clearer. And ठीक है, कोई बात नहीं है जैसा है. But more importantly, प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए. एंड आई एम श्योर देयर आर पीपल. हमने देखा पिछली बार माइकल मैसी को हटाया गया, हमने देखा इस बार 2 रेस डायरेक्टर्स होते हैं, हमने देखा आगे आने वाले चीज़ों के अंदर और होंगे. Though there are much more important things, like for example the safety of the drivers like Pierre Gasly and Jules Bianchi, etc., etc. Everything happened, but yes, I hope FIA is, I wish FIA is seeing this video. Oh, yes, sir. How could I miss it? You're like mentioned, like the safety of Gasly was, oh my god. It's okay. It's okay. We have talked about it enough, and I think social media has also seen that enough. Though there were so many bad and good things that were said for FIA. All in all, they've created a good. All in all, what I think is, I'm sure FIA is listening somewhere deep down, and they will bring up even they will bring the motorsport in even better shape, especially for Formula One. Thank you so much, Mohit bhai, for coming and sharing your knowledge with us. I'm sure we'll see much more of Mohit bhai in the coming days and coming years. Sure. Thank you so much. Until next time, guys, please take care of yourself.